So in Saturday's lecture, While loop. which part we have covered? Anybody? Break statement. Yes, while loop we have covered. Yes, break statement is also covered. Okay. So before that, we'll move forward. We will revise that part. So anybody can tell me what is syntax of for loop? For in range. Anybody? For variable in For range. range. In Yes, and then we its have to write what? range. Some parameters Yes, inside sir. that range. Yes, to decide what is the starting point of that counter variable or loop control variable, and what is the end point of an end condition Sir, for that specific variable. sir, students are waiting. Please accept them. It's auto edit, no? So no need to they ask them to join by college ID only. Already 70 students have joined. 71. 73 हो रहा है ना? कॉलेज आईडी से ज्वाइन करने के लिए बोलो उनको. Okay, so we will continue. So what we have to write inside a range function? Hello. Starting Hello. points are condition. Yes, condition means end point. For how many times that loop you have to execute. For example, if you're writing 10, and then what is the third parameter that is optional? Increase how many times should it increase, sir? Yes. So these are the three parameters that we have to consider, but these are not compulsory. If you want to start with 0, then there is no need to write down the 1 comma 10. You just simply write down 10. If you want to start with 1, then you can write 1 comma 10, or you can start you want to start with 2 3 likewise. Okay, and by default it will be incremented by what? इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? मीनिंग लिखता हूँ आपको, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. फॉर I equal to what? Tell me. I is equal to 1. 1 semicolon. I less than 10 ना? 10. Yes, Yes, sir. semicolon. I is equal to I plus 1. अरे यहाँ पे इस स्टेट में क्या होगा? I is equal to I plus 2 I ना? plus 2. Yes, sir. Yes, perfect. Okay. So this is the what? Actual representation of what? That for condition with respect to range function. Okay. ये जनरली हम C और C++ में ऐसा सिंटैक्स यूज करते हैं, बट इससे अभी पता चल रहा है हमें कि I की इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू इज 1. कब तक चलेगा लोग? अप टू लेस देन 10 तक वो कंपेयर करेगा. जब तक होगा वो अंदर जाएगा, एंड देन इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2. ओके, सो
next thing I will write here what, for example, print in bracket I. Okay, तो यहाँ पे आपको एक लाइन में चाहिए तो यू कैन यूज व्हाट, एंड स्टेटमेंट, तो आप डबल कोट में डाल सकते हैं. ओके, एंड यू हैव टू रन इट. All of you getting? Yes or no? Yes, sir. Hello? Okay. Yes, So sir. likewise you can do as per your requirement you can execute your loops. Okay. इसके बाहर कुछ लिखना है तो you can, that part you have to write outside. Yeah, इसलिए indentation is very mandatory or very important with respect to that for loop or hello or for loop or that specific while loop or if else thing. जैसे function में भी use करने वाले हैं indentation. ठीक है. आपको हेलो नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो यू कैन यूज स्लैश एन, so it will go to the next. तो पहले स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा. Getting the output? Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes. Slash n is for new line. Okay. तो यहाँ पे अभी मैंने स्लैश टी लिखा, तो देखो अभी क्या चेंज हो रहा है. What will happen? Space. Yes, tab. स्पेस मतलब जो नॉर्मल स्पेस नहीं है, डायरेक्टली टैब आ रहा है, मतलब बड़ा स्पेस आ रहा है. 1 स्पेस 3 स्पेस 5. एंड नॉर्मली जब मैंने ऐसे किया था तो देखो अभी यहाँ पे सिंपल सिंगल स्टेप दे दिया. यहाँ पे आपको मिलेगा वो जो डिस्टेंस है दो नंबर के बीच का, दैट विल बी नॉर्मल स्पेस. गेटिंग? So slash t and slash n is for what? Slash t is for tab and slash n is for new line. New line. All of you remember? Yes, I will write here the meaning of slash t. So hash slash t is nothing but is for tab. And यहाँ पे लिखता हूँ hash slash n is for new line. Okay, all of you clear with this? Yes or no? For loop समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. Now एक होमवर्क दिया था मैंने रिगार्डिंग ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप, वो डिस्कस करेंगे पहले. तो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज दैट होमवर्क? एनीबडी? क्या बोला था मैंने? होमवर्क दिया था, 2 होमवर्क दिए थे एक्चुअली. उसमें से एक था रिगार्डिंग व्हाट, दैट ब्रेक. हाँ, 1 to 5 आपको डिस्प्ले करने हैं बट कंडीशन आपको 10 लेना है, ऐसा कुछ तो था. ऐसा और नो? Yes, sir. हेलो. ओके, so how that can be right for, जिन्होंने किया वो बोलो, जिन्होंने किया है वो बोलो. For I in range बताओ. 0 to 10. 0 to 10, 1 to 10. Likewise, you can write anything. Okay, and colon. Now tell me what you have to write here. Next statement. Equals to 5. I is equal to 5. Yes. Print I. हाँ, equals to प्रिंट, हाँ वो डिपेंड्स है. अभी आप प्रिंट आई पहले करेंगे तो आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, और मतलब i इज इक्वल टू 5 लिखा तो चलेगा, बट आपने बाद में प्रिंट आई किया तो आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस. तो यहाँ पे मैंने कंडीशन अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ i इक्वल टू 5. अभी इस सिनेरियो में हमें i इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, बट आप जो बोल रहे हैं कि पहले कंडीशन लिखेंगे तो उसके बाद अपने प्रिंट लिखा तो वहाँ पे i इज इक्वल टू 6 लिखना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes or no? Yes. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ब्रेक ना? Break. गेटिंग? तो इसको रन करेंगे. और आई इन रेंज इंच रहेगा यहाँ. ओके, गेटिंग? 1 2 3 4 5. यस और नो? यही था ना होमवर्क? Yes, sir. अभी यही मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे लिखा नाउ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एज पर आवर रिक्वायरमेंट, आवर आउटपुट इज नॉट गेटिंग ना. ये इससे नहीं मिलेगा ना हमें जो चाहिए वो आउटपुट. नहीं सर. मिलेगा आउटपुट बट इट विल डिस्प्ले व्हाट 4 पर्यंत. यस यस, परफेक्ट. गेटिंग?
So condition Yes, कब sir. लिखना है, that is also one of the important thing while you are writing any program. Okay, ये समझ में है सबको? तो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? कंडीशन चेंज करना पड़ेगा. What I have write? 6. Yes or no? So you will get the output 1, 2, 3, 4, 5. Getting? Yes or no? Hello? अरे बोलो ना कुछ, तो आप बोलते नहीं कुछ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, yes. So all of you clear with the homework that I have given? क्या करना था आपको? If you have any doubt, you can ask. So we will move forward to next homework that I have given. क्या दिया था मैंने? Write a program to print reverse of number ना? Yes, sir. हाँ, किसी ने किया है? Anybody have done this? Write a program to reverse a number. Hello. Yes, sir. हाँ सर हो गया. ओके ठीक है, आई विल डिस्कस दिस फर्स्ट. मैंने मेरा लॉजिक लिखा, आप आपको बता सकते हैं. 2 लॉजिक है इसमें, 2 या 3 भी हो सकते हैं. इनपुट इन ब्रैकेट. अभी आपको एक तो नंबर तो लेना ही पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट. ये तो आपको सब जगह पे लगने वाला है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन डेटा ना. यस सर. सो एंटर द नंबर. आई एंटर द वन नंबर. ओके. सो यहाँ पे वाइल कंडीशन लेना पड़ेगा ना हमें. What you have to take? While. So while in bracket क्या लिखना है अभी यहाँ पे? Tell me the condition that you have to write. n is greater than 0. Greater than 0. होगा उससे? सर यार कौन सा भी अगर n is less than or equals to 10 वगैरह ले. नहीं, हमें क्या चाहिए? 10 क्यों लेंगे हम यहाँ पे कंडीशन? मुझे बताओ. हमें क्या चाहिए? रिवर्स चाहिए. रिवर्स के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा हर एक. अगर 10 से अगर रिवर्स में आएगा तो इसलिए. अगर 10 9 8 7 6 4 3 2 1 ऐसा चाहिए तो इसलिए वो कंडीशन है. ओके ओके ओके. 10 9 स्पेसिफिक बोल रहे हैं ना? हाँ यस सर. मैं फॉर एग्जांपल मैंने दिया 323. उस केस में इज इट ओके? हेलो. देखो No, अभी sir. यहाँ पे हमें नंबर, अभी यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक नंबर डाला #323. तो आई वांट आंसर व्हाट? 323 ना? ऐसा ना, मतलब वही चाहिए, अलग देते 324. ओके, 423 चाहिए ना हमें आंसर. ऐसा ना? Yes, sir. सो अभी ये Yes, 4 sir. 4 हमें चाहिए. 4 जब कब मिलेगा हमें? जब इसको हम रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर लेंगे. ऐसा ना, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 4 मिलेगा ना? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी उसके बाद हमें 32 का, मतलब 4 के बाद 2 चाहिए, तो उसको 324 को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये कब तक चलेगा? नॉट इक्वल टू 0 ना? यस और नो? यस और नो? ठीक है, करके देखेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक लिया वेरिएबल t इज इक्वल टू n mod 10. अभी इससे मुझे पहली वैल्यू क्या मिलेगी? इसमें t में पहली वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 324 के लिए 4. यस 4 मिला हमें. तो 4 को क्या करेंगे हम? प्रिंट करेंगे, मतलब लूप के अंदर ही डालेंगे स्टेटमेंट. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं t कॉमा एंड. ओके, एंड देन अभी 4 मिला है. 4 के बाद क्या चाहिए मुझे? व्हाट आई रिक्वायर्ड? 2. व्हाट आई वांट? 2. तो 2 चाहिए. 2 के लिए मुझे, मतलब अगेन 2 मिलने के लिए, 10 से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? वैल्यू 32 चाहिए ना? ऐसा और नो? n की वैल्यू जब 32 होगी तभी मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा ना? ऐसा और नो? Yes, हेलो. sir. तो वो कैसे मिलेगा? n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10. अभी मुझे 32 मिलेगा. करंट वैल्यू क्या होगी हमारी? 32 ना? ऐसा और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आगे ऊपर जाएगा वो, अगेन लूप के अंदर जाएगा. 32 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन आएगा नीचे. अभी t इज इक्वल टू 32 मॉड 10. कितना हो गया? कितना मिलेगा? 2. 2. प्रिंट. हाँ,
3 के बाद मैंने 2 प्रिंट किया, पहले 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट हो गया। अगेन अभी n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो 32 डिवाइड बाय 10 कितना होता है? अरे बोलो ना। 3 हाँ 3 पॉइंट नहीं रे, रिमेंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यस, तो ओके, सो वहां पे मैंने क्या किया, ऊपर लिखा, तो व्हाट इज, यहाँ पे हमें क्या डबल लेना पड़ेगा, एक्चुअली फ्लोर डिवीजन लेना पड़ेगा ना, यस और नो? तब क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा, नहीं तो पॉइंट में मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है क्या यहाँ पे? ये क्या? यस, अंदर आएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यस ना? यस सर। इक्वल नहीं है। तो 3 mod 10 कितना हो गया यहाँ पे फिर? 3 mod 10 3 सो मैंने प्रिंट 3 किया, तो हमारा हो गया 4 2 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद देखो अभी 3 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10 कितना था? 0 ना? 0, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स, फॉल्स, वी आर गेटिंग आउटपुट। यस, एंड हो जाएगा। यस, एंड हो जाएगा। गेटिंग? हाँ सर। यस सर। और एक लॉजिक यूज कर सकते हैं इसमें, एनीबॉडी हैविंग दैट लॉजिक? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करना है, ये सेम है बट एक स्टेटमेंट ऐड करना है यहाँ पे, और ये प्रिंट जो है ना बाद में करेंगे लूप के बाहर। किसी को पता है क्या? एनी अदर लॉजिक दैट यू यूज? हेलो, ये लॉजिक तो समझ में है सबको कैसे हुआ है? तो यहाँ पे ट्रेस करके देखेंगे। देखो पहले n की वैल्यू मैंने डाली है, तो n इज नॉट 324 इज नॉट इक्वल टू 0, तो लूप के अंदर आएगा, बराबर? ऐसा और नो? यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे, हैश t की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे बताओ? t इज इक्वल टू 324 mod 10 कितना मिलेगा मुझे? 4 ना? 4। उसके बाद t किया, तो t की वैल्यू प्रिंट हो गई 4। ओके, उसके बाद 4 के बाद मुझे 2 चाहिए, तो 2 मिलने के लिए मुझे 32 वैल्यू लेना, 32 एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर 324 से। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, तो 32 यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे कैसे मिलेगा मुझे आंसर? पहले हैश n इक्वल टू 324 डिवाइड बाय 10, so what is answer? 32, yes or no? So current value कितनी है अभी n की? n की करंट वैल्यू कितनी है? 32। so 32 is not equal to, यहाँ पे क्या होगा फिर? नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा? क्या होगा? 32 is not equal to 32 is not equal to 0, yes. now next iteration यहाँ पे क्या होगा? t equal to 32 mod 10, so what is answer here? 2। अभी हमारा t यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, पहला प्रिंट होगा हमारा 4, यहाँ पे मैं डबल कोट में स्पेस नहीं दिया इसलिए वो स्पेस नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा? प्रिंट 2। गेटिंग? व्हाट इज वैल्यू ऑफ t? वो कैसे प्रिंट हो रहा है समझ में आया? पहले 4 उसके बाद 2। अभी यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट इटरेशन, कॉमा n इक्वल टू 32 फ्लोर डिवीजन 10 कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? 3 व्हाट इज वैल्यू आई विल गेट? 3 यूएस। अभी यहाँ पे क्या होगा? थर्ड इटरेशन, 3 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। तो अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? t इक्वल टू 3 mod 10, so what is answer I will get? 3। so यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? 3 प्रिंट होगा, करंट वैल्यू t कितनी है? 3 है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉमा n इक्वल टू 3 फ्लोर डिवीजन 2 10 is equal to 0. now your condition, your current value of n is 0 and n is not equal to 0, मतलब 0 is not equal to 0, false। तो false हो गया, मतलब यहाँ पे लिखता हूं मैं 0 लूप टर्मिनेट होगा is not equal to 0, so loop will be terminate। yes, clear है? yes or no? all of you clear with this? Yes, sir. Yes sir। okay, so I will do another thing। हाँ बोलो। so, इसमें हम लोग रिवर्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं ना सीधा?
रिवर्स फंक्शन किसका? वो स्ट्रिंग में होता है, बस वी आर यूजिंग अ व्हाइल लूप ना। मैंने प्रोग्राम हाँ सर, स्टेटमेंट पर क्या बोला था मैंने? इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्ट्रिंग को वापस इंट में। हाँ यस यस यस, बट अभी स्ट्रिंग वाला पार्ट हमारा हुआ नहीं है, सो दैट इज ओके फॉर योर व्हाट, कि हमें आपको आंसर चाहिए उस केस में ठीक है, बट इन एग्जाम दे आर स्ट्रिक्टली मेंशनिंग व्हाट, दे आर नॉट मेंशनिंग दैट यूज इनबिल्ट फंक्शंस। गेटिंग? ओके सर। Getting yes or no? So in that case, you have to use for loop or while loop, and by using that, you have to use do the your logic. Okay? तो यहाँ पे अभी देखो, that is your correct. जो अभी आप ये करने वाले, क्या करने वाले? उसमें आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है. You can take a input as a 1 2 3 as a string also ना? Yes or no? डायरेक्टली रिवर्स फंक्शन अप्लाई करो, हम 4th चैप्टर में देखने वाले. Different functions on string. वो डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन है, वो अप्लाई करो, you will get the answer. Yes or no? All of you clear with this? यस सर। बट यहाँ पे अभी while loop सीखना है, तो while loop में आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज हर टाइम आपको इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जाम में आपको प्रोग्राम लिखना होता है, तो वहां पे इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट द इनबिल्ट फंक्शन एंड यू हैव टू राइट द कोड, वहां पे आपको प्रॉपर लॉजिक ही लिखना है। अभी और एक लॉजिक आपको बताता हूँ, इसको मैं कमेंट लिखता हूँ, जो एक्चुअली कुछ लोगों ने किया है, उन्होंने मुझे भेजा भी है उसका आउटपुट। ओके, so I think some have done like this. Yes or no? किया है किसी ने ऐसा? Anybody have done this? और इसके बाद हाँ सर, इससे क्या हो जाएगा? yes, कुछ लोगों ने किया है ऐसा भी। रिवर्स को 0 डालना पड़ेगा ना पहले। हाँ, रिवर्स मतलब REV को 0 डालना पड़ेगा ना पहले। yes, ऊपर डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, REV is equal to 0, yes, and यहाँ पे प्रिंट करेंगे फाइनली। I think you have done this code, and Abhijit also done this code. Yes or no? Abhijit, are you there? Yes, sir. Yes. Whom you also done, but you have done one mistake. You are writing that print statement inside that while loop. That's why what will happen? एक हर एक वैल्यू वहां पे डिस्प्ले होगी, तो वन बाय वन यू आर नॉट गेटिंग दैट 4 2 3 likewise answer. Yes or no? Hello? Yes. So you can do this modification. Write that print statement after what? While loop. Because after all iterations you have to write that. Getting answer? Hello? All of you getting the answer? यस सर। हाँ, अभी ये कैसे एग्जीक्यूट होता है देखो, यहाँ पे हमने टी निकाल के रखा, तो यहाँ पे क्या कर रहे देखो, रिवर्स की वैल्यू कितनी पहली, यहाँ पे ट्रेस करते डायरेक्टली, अभी ऑलरेडी ट्रेस करके रखा हमने। हाँ, REV इज इक्वल टू, बताओ रिवर्स की पहली वैल्यू कितनी, 0 ना, 0 इंटू 10 प्लस टी की वैल्यू कितनी मिली पहले हमें, 4 ना, एस और नो, सो इज इक्वल टू कितना हो गया ये 4 ना, एस और नो, कॉमा, Yes, sir. उसके बाद रिवर्स की वैल्यू इज इक्वल टू, अभी हमें क्या मिला था, टी की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली थी, तो क्या होगा यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू पहले कितनी हमारी 4 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया ये 42 ना, ऐसा और नो? हेलो हेलो हेलो, एम आई गेटिंग, आर यू क्लियर? हाँ सर। यस। उसके बाद कॉमा करके मैंने फिर से लिखा REV इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे अभी 420 42 into 10 plus 42 into 10, yes 42 into 10 प्लस, अभी बहुत से लोग आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही मैंडेटरी है, और इसमें ऐड क्या होगा फिर 3 ना, करंट वैल्यू ऑफ T इज इक्वल टू, व्हाट इज योर आंसर 420, यस। तो दिस इज द लॉजिक, बट इससे अच्छा ये पहला वाला लॉजिक सिंपल है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, मतलब ये भी कुछ हार्ड नहीं है, बट यू कैन ट्राई दिस आल्सो। ओके, ऑल ऑफ क्लियर विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आई हैव गिवन यस्टरडे एंड द सॉल्यूशन फॉर दैट? Yes, sir. ओके ओके, so we will move forward. अभी ब्रेक स्टेटमेंट भी हुआ था, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट? व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट? To break the loop whenever we want to stop.
यस टू ब्रेक द लूप वेन एवर यू वांट टू स्टॉप। वैसे ही क्या होता है, और एक होता है दैट इज कंटिन्यू। जैसे ब्रेक होता है ना, वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यू का आपको मीनिंग भी बताऊंगा और एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। कंटिन्यू, ये कीवर्ड हमने इसमें देखा था रिजर्व वर्ड में। दिस इज वन ऑफ द रिजर्व वर्ड दैट इज गिवन बाय कंटिन्यू स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखता हूं मैं, ओके। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ, सो लाइक ब्रेक स्टेटमेंट द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन ओनली अपीयर इन द बॉडी ऑफ लूप। जैसे ब्रेक यूज करते वैसे यूज करते, बट व्हेन द कंपाइलर एनकाउंटर्स दैट कंटिन्यू, मतलब जब जैसे कंपाइलर को कंटिन्यू स्टेटमेंट वहां पे मिलता है व्हाइल कंपाइलिंग दैट कोड, देन रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप आर स्किप, मतलब उसके आगे वाले स्टेटमेंट को वो क्या करता है, स्किप करता है। एंड अगेन काउंटर कंट्रोल गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लूप, मतलब वो क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट विल बी स्किप ओनली दैट स्पेसिफिक इटरेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा i इज इक्वल टू 5 के लिए मैंने क्या किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा है, तो i इज इक्वल टू 5 के लिए वो इटरेशन क्या होगा, स्किप होगा। बाकी स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, इट विल बी कंटिन्यू। देखेंगे वन बाय वन, देखो। फॉर i, प्रोग्राम करने के बाद आपको उसका मीनिंग समझ में आया प्रॉपर। रेंज इन फॉर एग्जांपल 1,10 लिखा है मैंने, एंड कोलन, एंड इफ i इक्वल टू 5 लिखा है। जैसे ब्रेक यूज किया ना, वैसे हम अभी ब्रेक, इंस्टेड ऑफ ब्रेक आई विल राइट कंटिन्यू, एंड देन आई राइट प्रिंट इन ब्रैकेट i, और उसके बाद में लिखता हूं डन इन ब्रैकेट डबल कोट में /n डन। एज पर डेफिनेशन क्या आंसर आना चाहिए जो आपको समझ में आया अभी? 5 स्किप होगा। यस 5 स्किप होगा, यस परफेक्ट। गेटिंग, यस और नो? हेलो, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट? कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे कि मैंने i इज इक्वल टू जैसे 5 लिखा, जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट का यहाँ पे कंपाइलर को यहाँ पे जब पॉइंटर आया वहां पे, सो इट विल डायरेक्टली स्किप द स्टेटमेंट विच आर आफ्टर दैट कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंट i। सो प्रिंट i को स्किप करता है, वो डायरेक्टली ऊपर जाता है, i की वैल्यू 6 होती है, फिर आगे कंटिन्यू होता है 6। अभी यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स है रहेगा, प्रिंट 6। तो वन बाय वन करेंगे। पहले क्या होगा, i की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i फर्स्ट, टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ i? 1 ना, 1, यस। लूप के अंदर आएगा 1 लेस देन 10, यस लेस देन 10 है तो लूप के अंदर आएगा। 1 इज इक्वल टू 5, नो, सो अगेन No. प्रिंट i होगा, यस। प्रिंट i में वैल्यू क्या प्रिंट होगी पहली, सो यहाँ पे हैश करके 1 प्रिंट होगा, कॉमा करके i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से 2 होगा। 2 इज इक्वल टू 5, नो, 2 प्रिंट होगा। लाइकवाइज 3 प्रिंट होगा, लाइकवाइज 4 प्रिंट होगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे 5 आया तो 5 इज इक्वल टू 5, लूप ब्लॉक इफ के ब्लॉक के अंदर गया, सो यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है। सो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑकर हो गया तो उसका कंट्रोल कहाँ पे जाता है, डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑफ योर लूप। सो स्टार्टिंग ऑफ लूप मतलब यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीमेंट 6, 1 से इंक्रीमेंट 5 के बाद कितना होगा 6। अगेन लूप के अंदर आएगा 6 इज इक्वल टू 5, नो, सो 6 प्रिंट होगा, देन 7 प्रिंट होगा, देन 8 प्रिंट होगा, देन 9 प्रिंट होगा, और 10 के लिए आपका लूप क्या होगा, स्टॉप होगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, डन प्रिंट होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, यस और नो? कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में है सबको? हेलो, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, Sir. sir. I will do one thing. Now tell me, यहाँ पे कंटिन्यू को आगे लेना पड़ेगा। So now tell me, what will happen? बताओ। सगळं स्किप होईल सर, Yes, perfect. फक्त 1. Yes, yes, yes. Getting? सगळं All of you getting? Yes or no? Yes. यहाँ पे क्या कंडीशन नहीं डाला, डायरेक्टली कंटिन्यू डाला, तो वो सारे इटरेशन स्किप हुए। मतलब कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे लूप के अंदर, दैट ऑल स्टेटमेंट विल बी स्किप।
और एक करके देखेंगे हम क्या करेंगे, और एक स्टेटमेंट डालेंगे इसमें, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और उसके पहले ये कंडीशन लिखेंगे। आया समझ में? ऑल ऑफ गेटिंग? 1 हाई, 2 Yes, हाई, sir. 3 हाई, 4 हाई, Yes, sir. 5 हाई क्या हो गया, स्किप हो गया। उसके बाद 6 हाई, 7 हाई, 8 हाई, 9 हाई, वही हमने यहाँ पे इसको कमेंट डाला मैंने। नाउ यू विल गेट व्हाट, ओनली 10 ना, yes or no? सर पण मागच्या ह्याच्यात आपण आयच्या ह्याच्यानंतर कंटिन्यू टाकलं, मग हाय प्रिंट व्हायला पाहिजे होता ना. कधी रे? हा पण कंटिन्यू स्टेटमेंट मागचं- नंतर ते स्टेटमेंट होतं ना. हा पण कंटिन्यू स्टेटमेंट नंतर हाय स्टेटमेंट होतं ना. हाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाय- आफ्टर कंटिन्यू जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे लूप के अंदर, दोज ऑल आर स्किप, नॉट ओनली दैट वन स्टेटमेंट. ऑल ऑफ यू क्लियर विथ दिस? म्हणजे यहाँ पे पूर्ण देखो. लूपच हे होतं. येस येस, लूप पूर्ण म्हणजे लक्षात ठेवा, जिथे मी कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑकर आला आणि ऑकरन्स नंतर मला सांगा, फॉर सिंपल है, यहाँ पे मुझे बताओ, सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ. कंटिन्यू यहाँ पे मैंने डाला है फॉर के अंदर, ओके, कुछ कंडीशन नहीं लिखा. अभी कंटिन्यू के बाद कितने स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर देयर? दो. Okay, two statements are there. And what is the definition of that continue? So when your continue statements occur in your loop, so at that time, the statements which are after the continue, inside that loop, all are skipped and counter is go to the starting point of your loop. मतलब for I is equal to range, मतलब वहां पे इंक्रीमेंट होगा आपका. उसके बाद फिर अंदर आएगा, फिर वो चेक करेगा. अभी इस केस में मैंने कंडीशन ही डाला नहीं है. हर टाइम पहला स्टेटमेंट क्या आ रहा है लूप के अंदर? कंटिन्यू. सो ऑब्वियसली कंटिन्यू के नीचे दो स्टेटमेंट लिखे, वो एग्जीक्यूट हो गए क्या? नहीं होंगे. ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ? यस और नो? ओके सर. यस. यस सर. सो यहाँ पे मैंने अभी देखो इस केस में आपको मिलेगा वो आंसर. यहाँ पे मैंने अभी 3 लिखा, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल स्किप? 3 हाई. 3. 3 high will be skip. Yes, perfect. Okay. So I think anybody don't have any doubt regarding continue statement also. Have you doubt regarding continue statement? सर और एक बार एक्सप्लेन करो. Okay. देखो ब्रेक का मीनिंग समझ में है सबको. पहले ब्रेक एंड कंटिन्यू आर सिमिलर. ब्रेक में क्या होता है बताओ मुझे? डायरेक्टली पूरा लूप क्या होता है? टर्मिनेट होता है. गेटिंग? यस और नो? जैसे यहाँ पे हमने किया था. तो क्या हो गया था यहाँ पे? जैसे मैंने कंडीशन डाला इफ आई इज इक्वल टू 6 और ब्रेक डाला, तो ब्रेक जब ये कंडीशन यहाँ पे ऑकर होगा तब यहाँ पे ब्रेक डाला है, तो मतलब क्या होगा? ये लूप यहाँ पे खत्म, टर्मिनेट होगा. ओके, इसके आगे वो एग्जीक्यूट होगा नहीं. इवन योर कंडीशन इज व्हाट? लेस देन 10. यस और नो? यस और नो? हेलो, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? ब्रेक स्टेटमेंट समझ में है सबको पहले? ओके. ना उसके अपोजिट क्या होता है? यहाँ पे लूप टर्मिनेट होता नहीं है. यहाँ पे वो स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप कर रहा है. स्पेसिफिक इटरेशन विल बी स्किप. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इफ, जैसे नॉर्मल लूप हो, यहाँ पे कमेंट डालता हूँ. सो नॉर्मल फ्लो बताओ यहाँ पे क्या होगा प्रोग्राम का? आई प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा. यस और नो? यस और नो? हेलो, 1 प्रिंट हुआ, हाई प्रिंट, नॉर्मल फ्लो. अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, पर जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला, ओके, इफ आई इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू, तो मुझे आई इज इक्वल टू 3 का इटरेशन मुझे स्किप करना था. मुझे प्रिंट आई नहीं करना था, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हो मुझे करना नहीं है. इसलिए मैंने क्या यूज किया? कंटिन्यू यूज किया. तो कंटिन्यू से क्या होता है? जब यहाँ पे ऑकर होता है आई इज इक्वल टू 3 कंडीशन, तो लूप के अंदर है कंटिन्यू, यहाँ पे स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है? वो नीचे जाता नहीं है. कहाँ पे? प्रिंट आई, मतलब प्रिंट 3 नहीं होगा और प्रिंट हाई भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली ऊपर जाता है. ऊपर क्या होगा? आई की वैल्यू 4 होगी.
सो 4 के लिए अगेन लूप के अंदर आएगा, 4 प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा, अगेन आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की 5 प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा, लाइकवाइज 6 7 8 9 10 और 10 के लिए लूप आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा। गेटिंग? यस और नो? ऑल ऑफ यू क्लियर? देखो अभी यहाँ पे 3 के लिए टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे लूप टर्मिनेट नहीं मतलब स्किप हो गया इटरेशन। क्लियर है सबको? एनीबॉडी हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट? हेलो, अरे बोलो ना कुछ, यस और नो तो बोलो। नो सर। हेलो, ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Hello? Can we move forward? Okay, so try this program, this type of program at your home, and if you have doubt, you can ask. So break and continue statement समझ में आया सबको? Yes or no? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ सर. हाँ नाही समज कोणाला? समजला? सांगा नाव सांगा काय? हेलो, एनीबडी? कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ? ओके, समझ आ गया सर. समजलं सर. कोणाला समजलं नाही, कोणी बोललं नाही समजलं. नहीं सर आ गया. सरळ सांगतो. One time I will again explain this topic. So what is a continuous statement? Continuous statement is used to skip specific iteration for that specific condition. So what will happen with respect to that? Continuous statement के बाद जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उस लूप के अंदर that will be skip. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे if है, if के बाद मैंने कंटिन्यू कंडीशन लिखा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया है, उसके बाद वो लूप के अंदर बोल रहा हूँ, लूप के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक कहता है प्रिंट आए, प्रिंट हाई. ओके, तो जैसे मैंने i इज इक्वल टू 1 किया तो 1 की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही, तो लूप के अंदर नहीं आएगा, मतलब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा नहीं. तो उसके बाद क्या है, कंटिन्यू के बाद प्रिंट आए, तो 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद हाई प्रिंट हो गया. ओके, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2, अगेन 2 की कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे, तो अगेन 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद हाई प्रिंट हो गया. ओके, अभी देखो i की वैल्यू 3 जब हो गई, i इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू. सो कंटिन्यू मतलब क्या, डायरेक्टली ऊपर जाएगा, वो 3 नहीं प्रिंट करेगा वहां पे, वो क्या करेगा 4 के लिए जाएगा एंड 4 इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 4 होगी और उसके बाद अंदर आएगा 4, अगेन यहाँ पे फॉल्स है तो प्रिंट हाई 4 एंड हाई, लाइकवाइज 5 हाई, लाइकवाइज 6 हाई, लाइकवाइज 7 हाई, लाइकवाइज 8 हाई, कॉमा हाँ कॉमा 9 हाई एंड देन 10 के लिए आपका लूप ही स्टॉप होगा बाय डिफॉल्ट और उसके बाद लास्ट पे होगा आपका डन. हॅलो सर. हाँ बोला. जर Yes, बोला. एका वेळेस मल्टिपल व्हॅल्यू स्किप करायची असेल तर? एका वेळेस मल्टिपल व्हॅल्यू कसं स्किप होईल सांगा मला तुम्ही. नाही होणार ना. तसा एक स्पेसिफिक डेफिनेशन सांगा. अरे मला एक सांगा मी डेफिनेशन काय सांगितलं तुम्हाला. व्हॉट इज डेफिनेशन आय टोल्ड यू? टू स्किप स्पेसिफिक इटरेशन, नॉट मोर देन 1 इटरेशन. डेफिनेशन के साथ जाओ. I am asking, what I have given the definition to skip specific iteration. For that purpose, you have to use continue. Getting? आणि असा प्रोग्राम की त्याच्यात व्हॅल्यू स्किप करता येईल? त्याला दुसऱ्या कंडिशन वापरायला लागतील तुम्हाला. ओके सर. आता तसं कसं स्किप करायचं नाही, ते आता लॉजिक बाय लॉजिक तुम्ही जेव्हा कन्सेप्ट शिक्षाल तेव्हा ते जाईल, पण स्पेसिफिकली कंटिन्यू ते होणार नाही. For specific 1 iteration, more than 2 iteration. It is only for 1 iteration. Clear है? Yes. Yes or no? And तो जो पार्ट असतो तो that is complex part. In that we are using multiple conditions. We are using what? जैसे कि आप जो iteration जैसे complex application देखते, उसमें बहुत सी चीजें होती कि that can be skipped and you will get the output for that. So in that case, logical part is different. So this is regarding simple logic that specific 1 iteration you have to skip. In that case you have to use continuous statement. Clear है? Yes or no? Yes sir.
Yes, sir. Okay. So can we move forward? Can we move forward with respect to this topic? Yes, Okay. sir. So we will कंटिन्यू विथ नेक्स्ट स्टेटमेंट. अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट है पास्ट स्टेटमेंट. ये सिंपल है एक्चुअली, इतना यूज होता नहीं इसका, बट इफ यू वांट टू यूज स्टेटमेंट. ओके. सो व्हाट इज अ पास्ट स्टेटमेंट? अभी जनरली हमने ये भी देखा, कंटिन्यू भी देखा, उसके बाद ब्रेक भी देखा. So what is past? Past statement is used to when the statement is required syntactically correct, but no code has been executed, or it specifies a null operation, or simply no operation will be performed when you are using a past statement. अभी आप ये यहाँ पे दिखाता हूँ, एक कोड दिखाता हूँ. For I in the range, और ये आप फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं. जब फंक्शन आप यूज करेंगे, और जनरली वहां पे यूज होता है वो, मतलब जब आपको इफ रिक्वायर्ड देन यू हैव टू यूज, अदरवाइज देयर इज नो नीड. वो कैसे, वो आपको बताता हूँ. वो डेफिनेशन का मीनिंग पहले आपको बताता हूँ, देन नल स्टेटमेंट कैसे होता है वो आपको बताता हूँ. जैसे कमेंट होता है ना, वैसे उस टाइप में होता है, बट कमेंट में हम स्पेसिफिकली क्या कुछ हैश और ट्रिपल कोट्स वी आर यूजिंग. हियर वी आर नॉट यूजिंग लाइकवाइज, वी सिंपली राइट डाउन द पास्ट स्टेटमेंट. और यही एक कोड में यहाँ पे कॉपी करता हूँ. ओके, मैंने डबल कोट में आ डाला. गेटिंग, ये आई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, समझ में आ सबको? टेल मी व्हाट विल हैपन. कुछ डिफरेंस है क्या, मतलब आउटपुट में कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या पास्ट स्टेटमेंट का? हेलो, एनी इम्पैक्ट विल बी डन ऑन दैट आउटपुट ऑफ दैट टू कोड्स? एक में मैंने पास्ट यूज किया, एक में यूज नहीं किया. हाँ, सो दैट इज अ डेफिनेशन दैट it specifies a null operation or simply no operation on statement or for that specific reason. Nothing happens when past statement is executed. Okay, यहाँ पे कुछ भी simply syntax we have to write past. But आप बोल रहे हो कि अभी ये यूज क्यों करना है? Getting? Yes or no? इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो यूज क्यों करना है? So that thing I will explain you. जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी, ये तो समझ में है ना सबको, इसका कुछ इम्पैक्ट होता नहीं कोड के ऊपर, नॉर्मल कोड में. Yes or no? Hello? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. So अभी now I will tell you why we have to use this. जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ये हटा दिया. अभी आप क्या कर रहे हैं? You are doing the coding. कुछ एक सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग पाइथन, और आपको वहां पे आपने कुछ तो एक सिंटैक्स आपने लिखा. मतलब आपको क्या करना है, मुझे ये फॉर लूप लिखना है, बट फॉर लूप का अंदर का लॉजिक मुझे नहीं लिखना है, या कुछ फंक्शन मुझे क्रिएट करके रखना है, बट आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग इनसाइड दैट लॉजिक. ओके, फंक्शन का पार्ट जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा. ओके, बट जब आप सिंटैक्स लिखेंगे तो उसमें तो कुछ लॉजिक लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कौन सा एरर मिलेगा बताओ मुझे. विच एरर विल बी देयर? यस, सिंटैक्स एरर मिलेगा, इंडेंटेशन वाला. जैसे कि यहाँ पे भी देखो क्या मिला, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल पार्सिंग. मतलब ये लूप ही यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप आपने लिखा है बट लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट ही नहीं लिखा. यस और नो? यस और नो? सो यहाँ पे आपको एरर आएगा, बट आपको ये लिखना है, ऐसे ही रखना है, ये फॉर लूप मुझे ऐसा ही रखना है. यू डोंट वांट एनी एरर, यू डोंट वांट एनी एरर. सो सिंपली व्हाट यू हैव टू राइट हियर, पास. गेटिंग? यस और नो? Hello, getting? So Yes, what sir. is the use of this statement now? To make your code syntactically correct.
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुछ लॉजिक होते हैं, जैसे फॉर लूप होगा, फंक्शंस हो गए, सिर्फ आपने फंक्शन का नाम लिख के रखा कि ये फंक्शन मुझे इन फ्यूचर में आप मुझे यहाँ पे ऐड करना है। इन फ्यूचर मतलब जैसे आज आप कोड कर रहे हैं और आपको वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट एप्लीकेशन। ओके, तो आपने क्या किया, सारे फंक्शन पहले आपने चूज करके रखे कि ये फंक्शन मुझे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अपडेट फंक्शन, ऐड डेटा, डिलीट डेटा, देन व्हाट डिस्प्ले डेटा, लाइकवाइज फंक्शंस यू हैव क्रिएटेड। जैसे कि यहाँ पे आपको बताता हूँ सिंपल, अभी फंक्शन टॉपिक हुआ नहीं है, डेफ फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिखा मैंने f1। ओके, तो ऐसे करके लिखा मैंने। ओके, उसके बाद और एक देखो यहाँ पे लेके तुरंत यहाँ पे इंडेंटेशन आया, सो ऐसे करके मैंने और भी फंक्शन लिखे कुछ f2 लाइकवाइज। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, और उसमें लॉजिक नहीं, बट लॉजिक मुझे 8 और 10 डेज के बाद उसमें उसे लिखना है उसे। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, सिंपली व्हाट यू हैव टू राइट इनसाइड दैट फंक्शन, व्हाट यू हैव टू राइट, पास स्टेटमेंट। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, yes or no? Getting? यहाँ पे आपको एरर आया, तो सिंपली आई विल राइट व्हाट हियर, yes or no? Why we have to use the past statement? क्लियर है? मतलब इससे मुझे याद रहेगा कि मुझे ये f1 नाम का फंक्शन का लॉजिक लिखना है, तो जब मुझे वो यूज करना है तब मैं यहाँ पे जब मेरा टाइम आएगा कि वो लॉजिक लिखना है मुझे, क्योंकि कोड का कैसे रहता है, इफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस आर देयर वी हैव टू राइट नंबर ऑफ फंक्शंस इनसाइड इट। अभी ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, थर्ड चैप्टर में आपको बताऊंगा व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी सिर्फ मैंने आपको पास स्टेटमेंट के पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे उसको यूज किया है, नॉट मोर देन दैट। ओके, उसके अंदर लॉजिक क्या लिखना होता है, कैसे होता है, वो बाद में बताऊंगा। ऐसा नो क्लियर है सबको? Yes, Yes, Hello, sir. what is use of past statement? So anybody can tell me the definition of past statement? It specifies the null operation. Yes, it specifies the null operation and it is used when the statement is required syntactically correct. It is used when the statements are required syntactically correct. जैसे मुझे ये for statement syntactically correct चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मतलब उसमें लॉजिक नहीं लिखा, बट व्हेन यू आर रनिंग दिस कोड इट गिव्स यू एरर ना, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग एनी व्हाट, उसका पूरा लॉजिक ही कंप्लीट नहीं किया, सिंपली आपने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज व्हाट 1,10, ऐसा और नो। और यही चीज जब आप इसमें करते हैं, किसमें, C++, वहां पे करली ब्रैकेट होते हैं, उसलिए वहां पे उसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे वैसे नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे इंडेंटेशन का पार्ट आता है। सो यहाँ पे फॉर लूप में, फॉर लूप जब लिख रहे तब आपको वहां पे इंडेंटेशन होता ही है। सो वहां पे इसको कंफ्यूजन हो रहा है कंपाइलर की कि वहां पे उन्होंने ये फंक्शन कब, ये फॉर लूप कब एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा प्रिंट, तो उसको समझ में आ रहा है कि इसका व्हाट इज यूज ऑफ दिस फंक्शन, कि प्रिंट आई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं आप, पर जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो वहां पे उसको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द एंड ऑफ दिस फॉर फंक्शन, मतलब फॉर कब एंड होगा वो उसको पता नहीं चल रहा है। एंड जब कब होता है, जब यहाँ पे आपने लिखा कुछ प्रिंट इन आई, तब उसको पता चल रहा है कि एंड हो रहा है, तो आप यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। गेटिंग, यस और नो? बट जब यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख रहे तब उसको वो डेफिनेटली एरर देगा, बिकॉज वो सिंटैक्स ही वैसे कि फॉर लूप के अंदर आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा व्हाइल यू आर राइटिंग द कोड इन पाइथन। C++ में आपने सिंपली क्या लिखा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 कोलन आई लेस देन 10 i प्लस प्लस करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, तो उसको वहां पे समझ में आ रहा है कि फॉर लूप ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बट हियर वहां पे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस का मैटर होता है, स्पेस यहाँ पे आता है, तो स्पेस तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दे सकते हम, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये स्पेस है, बोल सकते हैं यहाँ पे ये स्पेस है, कंपाइल को नहीं समझ में आएगा ना। So that's why we have to write here what past statement. If you have to write the logic of that for loop in the future, and then you will get not getting any error. So exam में होता है what is the use of past statement to make a code syntactically correct. That for that purpose what you have to use past statement. I think hope you all of you understood the past statement also. Yes, sir. कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिंपली यू हैव टू, ये यहाँ पे नल ऑपरेशन होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने
जहां पे मुझे वो उसकी जरूरत नहीं थी वहां पे मैंने यूज करके दिखाया। सो ऑब्वियसली यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें लिखा है तो भी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, नल ऑपरेशन हो रहा है, नथिंग विल बी डन हैपन विद रिस्पेक्ट टू दैट। बट यहाँ पे आपको एक्चुअली में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे ये सिंटैक्स करेक्ट, सिंटैक्टिकली कुछ एरर नहीं आना चाहिए था कोड में, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पास यूज किया। सो यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ पे आ रहा है, हो रहा है नल ऑपरेशन, और यहां पे क्या हो रहा है, मेक कोड सिंटैक्टिकली करेक्ट। गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. और नो? ओके। यस सर। हाँ, तो इस टाइप के आपके एग्जाम में कोड हो सकता है कि जिसमें आपको फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, तो आपको वो कंफ्यूजन पर्पस के लिए दिया जाएगा। सो आउटपुट क्या होगा, 1 to 9 ना, यस और नो, 1 to 9 10 डन, जैसे यहाँ पे मिला है। और पास नहीं होगा तो भी आउटपुट क्या होगा, पास नहीं होगा तो भी आउटपुट क्या होगा, वही होगा, सेम। सेम सेम। तो एक ट्रिकी पर्पस के लिए आपको इस टाइप का प्रोग्राम हो सकता है। So I think all of you understood the three statement, that is break statement, continue statement and pass statement. Pass statement का इतना यूज होता नहीं है, but when you are using the complex application, in that case there is a need of what, pass statement. Normal एक मतलब 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन का जिसमें ज्यादा कुछ फंक्शंस में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको देयर इज नो नीड टू राइट डाउन व्हाट, पास स्टेटमेंट, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ बोलो। Sir, then what is the basic difference between comment and a pass statement? क्योंकि functions बहुत थोड़ा यस यस बराबर। तो कमेंट में क्या है, कमेंट भी वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होता, बट यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली स्टेटमेंट, बट ऑपरेशन नल होता है। और कमेंट में क्या होता है, कमेंट को स्किप ही करता है डायरेक्टली। व्हाट विल हैपन, कमेंट जब डाल रहे हैं उसको वो स्किप करता है डायरेक्टली, और इस केस में क्या होता है, इसको सिंटैक्टिकली करेक्ट बनाता है, मतलब ये पास स्टेटमेंट एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है बिकॉज दिस इज द कीवर्ड, बट द लॉजिक ऑफ दिस पास स्टेटमेंट इज व्हाट, इट परफॉर्म नथिंग, नथिंग विल बी हैपन विद रिस्पेक्ट टू योर लॉजिक। बट वहां पे क्या होता है, basically it is holding the place ना, प्लेस होल्डर बोलते हैं ना उसको। यस प्लेस होल्डर बोल सकते हैं हम, बट प्लेस होल्डर क्यों बोलते हैं, बिकॉज प्लेस होल्डर किसके लिए, जहां पे आपको कुछ सिंटैक्स, आपको लॉजिक नहीं लिखना है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल डेफिनेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जब फंक्शन जहाँ पे मैंने जो क्रिएट किया, एक्चुअली फंक्शन टॉपिक हुआ नहीं बट आपको करके दिखाया। फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे हमने देखे प्रिंट, उसके बाद जो भी मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन देखा, तो वो फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, बट सम ऑफ द फंक्शन यू कैन क्रिएट योरसेल्फ आल्सो, जो थर्ड चैप्टर में हमको यूज करना है, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उस केस में कैसे, मैंने फंक्शन करके रखा बट उसमें कुछ लॉजिक नहीं लिखा है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉजिक के जगह पे पास लिख सकता हूँ। तो योर कोड में इट विल बी व्हाट, इट कैन बी व्हाट, syntactically correct, that safe definition, that function is or that specific function will be syntactically correct। और जब यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ तो ये यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है, nothing will be happen, ये एग्जीक्यूटिव होगा, ऐसा और नो, गेटिंग। बट आपको मतलब कमेंट भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कमेंट की जगह पे अभी ये कैसे, ये कोड प्रॉपरली रख रहा है, मतलब प्रॉपर लग रहा है कि वी आर यूजिंग द फॉर लूप and instead of writing any logic I have written pass statement, in future I will make the logic in that। तो आपको कमेंट भी लिख देना है तो यू कैन गिव द कमेंट आल्सो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी कमेंट देके रखा है, और इससे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा कोड ना आपका, बट दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ कमेंट, बट दिस विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, कमेंट, बट व्हेन यू आर remove this it will be considered as a instruction of your program, instruction of your proper program, getting proper so instruction। basically comment is completely ignored, whereas pass statement is kind of function which is not seen in output। yes perfect yes। comment completely ignore होता है, pass statement ignore होता नहीं, but nothing will be happen with respect to your output, मतलब ऐसा कुछ तो डिस्प्ले होगा, कुछ अलग से कुछ आउटपुट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, simply it will give your output for your code। So generally आपको बेसिकली बताओ, to make your code syntactically correct, what you have to use, pass statement। Getting? Yes or no? Okay। So comment और pass statement में आपको डिफरेंस समझ में आया क्या होता है?
comment are completely ignored, but past statement is not completely ignored. That can be compiled by compiler because वो कीवर्ड है, आपको समझ में आ रहा होगा. उसका सिंटैक्स, उसका फॉन्ट भी देखो क्या है, जैसे फॉर का फॉन्ट है वैसे ही पास का फॉन्ट है. यस और नो? दैट इज नॉट द थिंग विथ योर कमेंट. कमेंट में जनरली ग्रीन में वहां पे डिस्प्ले हो रहा है if you are using hash, or if you are using more than one statement that is multi-line comment, you have to give what single quote 3 times or double quote 3 times. Hope you all of you understood the concept of what what past statement, break statement, continue statement. Yes or no? हाँ सर. Okay. So अभी इसमें टॉपिक क्या बचा है हमारा? नेस्टेड फॉर लूप के एग्जांपल्स लेने हमें. We will take 3 or 4 एग्जांपल रिगार्डिंग नेस्टेड फॉर लूप. 1-2 आपको करने के लिए दूंगा मैं. ओके. एंड नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर जनरली ज्यादा प्रोग्राम होते नहीं, बट एज अ पार्ट ऑफ व्हाट सिलेबस वी हैव टू कवर इट. ओके. सो दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज वो सेपरेट टॉपिक है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब फॉर के अंदर फॉर होता है तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. बिकॉज अब देखो कुछ लोगों को सिंपल फॉर लूप के लिए भी दिक्कत आ रही है. So that's why I will cover that in whole lecture. I will give for that nested for loop. Okay. So in tomorrow's lecture we will see what nested for loop concept. Am I clear? Yes, or no? Okay. So we'll take 2 or 3 examples regarding nested for loop. For के अंदर for और एक example of that nested if का भी लेंगे. वो इजी है, उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है. सिंपली वो कंडीशन फॉल्स होता है, अंदर आएगा, अंदर वाली कंडीशन फॉल्स होगा तो उसके अंदर क्या होता है वो लाइक वाइज. ओके. इफ के अंदर इफ. So that one example we will see. Tomorrow we have I think 2 lectures. Yes or no? 2 lecture है ना? As per new timetable. Yes sir. Timetable देखा क्या है? Timetable देखा है? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes. So we will stop here for today's session. क्या क्या देखा हमने? Continue statement and past statement. और ब्रेक स्टेटमेंट का रिवीजन. सो एनीबडी कैन रिवाइज ऑल these 3 things. Anybody? Abhimanyu is there. Abhimanyu Kanse, are you there? Abhimanyu. I think you are absent then. Okay. Then Aditya. Aditya is there. Aditya Deshmukh. Aditya also absent. Okay. Present, sir. Okay. So tell me what is break statement? Aditya. Hello. Can you tell me what is a break statement? For what purpose we have to use the break statement? Aditya. Sir, break statement iteration skip करता है. Iteration skip करता है या loop terminate करता है? Iteration skip कौन करता है? Hello. Sir, terminate करता है sir. Yes. So the break statement is used for to terminate the loop at specific condition, and continue statement is used for to specific iteration को क्या करना है आपको skip करना है. जैसे कि हमने देखा था 5 को skip किया था, 3 को skip किया था, और जो ब्रेक में हमने क्या किया था i = 5 किया था. सो i = 5 के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब आपका लूप क्या होगा टर्मिनेट होगा. 6, 7, 8, 9 that things not executed for that specific code. Okay. And then next what is past statement? Anybody? Akshada, are you there? Akshada. Akshada. I think Akshada also absent. It is a statement which will not be executed, but it will avoid the syntax error basically, and Yes, it's yes, a placeholder. Yes, it's a placeholder, or it can be a null it can perform null operation with respect to program, or it is used to generally make your code syntactically correct. Okay. So we will stop here for today's session. All of you will revise these all things. Huh? Hello. Akshada present है sir. Chat box में दिली. Hello.
हो हो जेवढ्यांची नाव घेतले तेवढे ते प्रेझेंट आहेत पण फक्त बोलत नाहीत ना, त्यामुळे म्हटलं मी ॲबसेंट. आलं का लक्षात? आय नो शी इज प्रेझेंट ऑर ही इज प्रेझेंट, but they are not responding. That's why I'm what is the use of that, na? I'm taking the lecture, you are not responding from your side. Some of those specific students are responding from your side, and that is not the thing. It's considered why नाही you सर are तिचा माईक taking इश्यू lecture. सर ते Two-way चॅट बॉक्स मध्ये communication must be टाकलं. there. सर सर मला अभिमन्यूचा आहे ना सगळ्यांचंच नेटवर्क माहिती इश्यू की झाला कसं त्यामुळे मीटिंग लेफ्ट झाली. हॅलो मला माहित नाही की तुमच्या साईडला आता इतक्या वेळ तर तुम्ही मी जेव्हा क्वेश्चन विचारला तेव्हाच तसा लेफ्ट झाला. नाही नाही सर त्याचं जवळपास असं तो अर्धी मिनिट झाली तो कधीच लेफ्ट झाला जॉईनच होत नाही नेटवर्क इश्यू झाला. नाही 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 मी इथे ओपन केलंय आणि अजून सुद्धा अभिनय करण्याचे इथे दिसते मला. मी स्क्रीनशॉट पण पाठवू शकतो वाटल्यास. सर त्याचं कसं झालं माहितीये का त्याला मी स्क्रीनशॉट पाहिजे तर त्याचं काय झालं तो मेसेज सेंड करतोय ना नेटवर्क एरर यायला लागलाय. असून नसल्यासारखंच येते. हा ठीक आहे चालेल ठीक आहे. आता ते बघा तुम्ही तुम्ही स्वतःला फसवताय की मला फसून तर काय मला परवडत नाही. ओके तुम्ही तुमच्या लेवलला काळजी घ्या की तुम्हाला तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट समजल्या पाहिजेत. नसेल समजत तर तुम्ही विचारा पण आन्सर देता आलं पाहिजे. कारण की बऱ्याच गोष्टी मी आता भरपूर वेळा रिपीट करतोय. असं नाही की खूप फास्ट घेतोय. एक एक गोष्ट मी प्रिव्हियस लेक्चरची पण आता ब्रेक स्टेटमेंट करून दाखवलं. कंटिन्यू स्टेटमेंटचे एक्झाम्पल घेतलं. नंतर होमवर्क दिलाय तो पण एक्सप्लेन केलेला आहे आज. त्यामुळे मला असं वाटतं की एक्सपेक्टेड असेल की तुमच्याकडून ऍटलीस्ट आता कोड तर विचारला नाही फक्त विचारलं की ब्रेक स्टेटमेंट काय कंटिन्यू स्टेटमेंट काय पास्ट स्टेटमेंट काय. सो फ्रॉम युअर साइड आय वॉन्ट आन्सर्स फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स. सो यू हॅव टू रिवाइज इट अँड ऑल ऑफ यू गिव्ह द quiz 1. 45 students have given already. Those who are remaining to give the quiz 1, they have to give it regarding unit number 1. Yes or no? Am I clear? Yes sir. Am I clear? Okay. So all of you give the quiz because जैसे कि मैं 4 or 5 days पहले मैंने डाला था. So hope you revise that unit and revise नहीं किया है तो revise करो और quiz दो. It is compulsory. Okay, as per your opinion, that is in mentor meeting, some of the suggestions from student. After each and every unit, give some questions, MCQ practice questions. So that's why I have created that quiz regarding unit number 1. So all of you give that. And next thing, all of you be in interactive session होना ही चाहिए. सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आपको एटलीस्ट सम ऑफ द टाइम तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है एंड सम ऑफ द टाइम स्पेसिफिक स्टूडेंट ही हर टाइम क्या कर रहा है रिप्लाई दे रहा है. Yes or no, likewise also. And question to पूछा था specific students are giving the answer. So that is not expected from your side. Am I clear? Yes, sir. Yes Am I sir. clear? Okay. So I think you don't have any doubt. If you have doubt, you can ask anytime. Okay. Give your attendance. Roll number 1. Sir, C01 present. Number 1. Okay. C01 present. Present. Okay. Okay. Roll number 2. Present, sir. 2 present sir. Okay. Roll number 3. Okay. और माइक का इशू सबको होता है क्या? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा. अटेंडेंस तो माइक का इशू किसी को नहीं होता है. When I'm asking the question at that time, your issue is there. Yes or no? बराबर ना? Roll number 3. C3 present, sir. Yes. 4. Those have a problem, they can. Okay. C4 present. C4 roll number 5. Yes. Roll number 5. B5 present, sir. Okay. B5 present. C5. Okay. C5 is also present. 6. Roll number 6. C6 present, sir. B6 present sir. Okay. C6. Present, sir. C6. Okay. 7. Roll number 7. Yes, present. B7. B7 present sir. Okay. Roll number 8. C8 present. B8. Roll number 9. Roll number 9. C9. B9. Okay. Roll number 10. C10 present. B10. Roll number 11. C11 present.
Okay. 12. B12 present, sir. C12 present. 13. B13 Roll number 13. C13, sir. 13. Okay. 14. Roll number 14. 14. Yes, present. C14 present. B14 present. 15. Present, sir. B15 is not. Yes, B15 is not there. C15 is present. 16. C16 present. Okay. 17. C17 present, sir. Okay. 18. B18. C18. B18. C18 present, sir. Okay. B18. Okay. 19 present. Both present. 20. So B20 present. Okay. 21. C21 present, sir. 21. Sir, Okay. B21 22. present. Okay. 22. 22. Yes. B22 present. C22. 23. B23 23. present, sir. Okay. C23 present, sir. B23 present. 24. 24. B24 Yes. present. C24. Yes. C25. B25 present. Okay. 26, 27 are not there for C. B26 present, sir. B26 present. B27 also present. 28. C28 28. present, sir. Okay. B20 is also present. 29. C21 present. 29. C29 present. B also present. 30. C30 C0. present, sir. Okay. B30. B30. Okay. 31. B31 present. 31. present, sir. Okay. 32. C32 present, sir. Okay. And C31. C31 absent, no? Sir, B32 present. B name is I am asking about 31. B30. C31. Okay. Then 32. 32 is present. Okay. 33 also present. 34. B34 present, sir. C34 present. B34. Okay. 35. Present. Okay. Present, sir. 36. C35 present. E36 present, sir. 37. 37. B37 present, sir. Yes. 38. 38 B absent होगा. C38 present. B38 absent, na? Yes. B39. C39 is present. 40. C40 present. B40 present. Okay. 41. 41. B41 is present. C41. B41 present. C41. Okay. 42. C42 present. Yes. B42. B42. 43. C43 present. Okay. 44. 44 is also present. Okay. Okay. 45. Sir, B45 present, sir. Okay. 46. C46 present. Okay. B46 present. 47. C47 present, sir. Okay. 48. B48 present, sir. Okay. 49. Present. 50. 50 also present. B50 also present. 51. B is not there. Yes, C51 is present. 52. C52 present, sir. Okay. D50 is also present. 53. C53 present. Okay. 54. B54 present. 54. Okay. 55. B55 present. C55. Yes. present, sir. Okay. 56. 56 present, sir. Okay. 57. 57. C57 present, sir. Okay. 58. 58 also present. 59. 59. C present. 50. 60. 60. Sir, Yes, B58 present. present. Yes. 61. Present. 62. Sir, C62 present. Present, sir. Yes. 63. 63. Yes. 64. 65. 66. 65, 66. Okay. 66. 66. 67. 68.
68. So option number I will call C division 9, 22, 41, 66, 68. And B division 8, 9, 10, 16, 18, 30, 38, 42. Sir, 9 is present. B division. B division 9 present. Okay. Okay, so we'll stop here. Okay, thank you.